Morning everybody, welcome back to the channel. Friends, as promised earlier, today we are going to deal with Michelson-Morley experiment. And yesterday a boy commented that, sir, please teach in English language, means make some Hindi also. So I'll try to do that also. सो आज हम लोग पढ़ेंगे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बारे में, और इस एक्सपेरिमेंट का बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस है जब हम बीपीएससी फिजिक्स ऑप्शनल की बात करते हैं या फिर पूरे फिजिक्स में भी. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. माइकलसन मोरले ने 1887 में एक एक्सपेरिमेंट करा था अपने ही डिज़ाइन किए हुए इंटरफेरोमीटर से, जिसमें वे चाहते थे इस बात को क्लैरिफाई करना जो लोगों के अंदर एक डाउट था कि जैसे लाइट कैसे हम लोगों के पास पहुंच जाती है. उसी समय उनका जो लाइट का वेव नेचर के ऊपर भी प्रकाश डाला गया था कि लाइट एक वेव है और हम लोग जैसे जानते हैं कि वेव नीड मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल. तो हम लोग को ऐसे लगा कि लाइट भी तो वेव है. इफ़ लाइट वेव है तो लाइट कौन सा मीडियम से होके आता है हम लोगों के पास. तो उसी समय लोगों के अंदर एक व्हाट वी से मतलब इमेजिनेशन था कि कुछ एक ओमनी प्रेजेंट मीडियम है जिसको उन्होंने ईथर कहा था, कि पूरे यूनिवर्स में एक ओमनी प्रेजेंट मीडियम है ईथर, और वह बिल्कुल ही स्टेशनरी है. उसी के रेफरेंस में हम लोगों ने लाइट की स्पीड को भी मेजर कर रखा था और हम मान लिए थे कि हाँ ईथर पूरे जगह पे है. माइकलसन साहब को ये बात पची नहीं. वो चाहे क्या कि मतलब हम इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके बताए, इसीलिए उन्होंने एक सेटअप तैयार किया जिसको माइकलसन मोरले सेटअप भी कहा जाता है या फिर माइकलसन मोरले इंटरफेरोमीटर भी कहा जाता है. सो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ लिखा हुआ है जो हम एक बार पढ़ भी देते हैं. माइकलसन मोरले परफॉर्म्ड एन हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंट इन 1887 टू सॉर्ट आउट द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ओमनी प्रेजेंट मीडियम दैट इज ईथर. Whatever I have stated a bit earlier in Hindi, the same thing has been written here also. They use a very sensitive device earlier designed by Michelson in 1881 and is known as Michelson interferometer. Means this whole setup that you guys are seeing here or watching here is Michelson interferometer only. Then with this setup he tried to check the variation in velocity of light measured with respect to earth moving through ether. If variation in velocity observed, then it will be confirmed that there is a ether present everywhere, or existence of ether can be verified or simply taken as. So gentlemen, let's just see the setup once again. Michelson interferometer include these all set of parts, and the first part is the source of light. The source of sodium, he took sodium lamp here as a monochromatic source, and then he placed a converging glass here to just converge the beam of this source so that it can fall on these plates, partially silvered plates. G and C are two partially silvered plates, means they are partially silvered so that they can transmit as well as reflect, means at the same time they do reflection and refraction. And these plates are inclined at 45 degree with the horizontal. And further he placed two mirror M1 and M2 fully silvered, means they are fully silvered mirror so that they can do reflection only. And then he also placed a telescope near just below for the sake of observation. And then he let the light beam fall on the partial plate. It simply gets what reflected partially and then partially refracted, and then again it goes through this plate and fall on this fully silvered mirror, and then again get reflected back to the plate and then to the telescope. Here is an observer who can observe that what is the time delay, what is the time difference between both the path, means from going this place to mirror M2 and then returning back to G,
and from going G to M1 and then returning back to G again. So in both the spam he calculated the time and then he calculated the time difference, because if there will be the time difference, there will be the path difference also multiplied by speed of light, and if there is a path difference then he can simply observe fringe pattern here to the telescope. So he simply set up all these setup and perform the experiment. I have wrote all these things. What I have stated that S is monochromatic light source. Here in Michelson's interferometer it's a sodium lamp source. L is a converging lens to converge the beam of lights. G is partially silvered glass plate. C is compensating plate. M1 M2 highly polished plane mirrors हैं और T telescope है for the sake of observation. Now just move to the mathematics part of it. So gentlemen, let's just think T1 be the time to go from G to mirror M2. Means we are first taking this case, means from G to M2, because it's a horizontal, and also we have thought that this whole setup is on Earth and the velocity of Earth is 3 into 10 raised to power 4 meter per second. So we have thought that this whole setup is moving with 3 into 10 raised to power 4 meter per second with respect to ether. So it's a very simple mathematics that time distance speed होता है, और हमने बोला कि T1 prime is a time taken by beam of light from G to M2, and T2 prime is the time taken by light or the beam of light from M2 to G. So we have to calculate both and then summed up to just clarify the first case. So T1 prime is L upon C minus B. Why we are taking C minus B? Because we have thought that the whole system is going in this direction, and the beam of light is also going in this direction. Means the velocity of speed of light is in this direction only, and the velocity of whole setup is also in this direction. So according to relative motion, we have to just do subtraction of one velocity with respect to other. And similarly T1 double prime, that is from the time taken from mirror M2 to come back to plate G, will be L upon C plus B. This is just a simple relative motion. If the direction of velocities are opposite, then they are going to be summed up in relative motion, and if they are same, then they are going to be subtracted, or their difference will be counted. So we can say T equals to T1 prime plus T1 double prime, and that we will sum both the above time taken, and it further doing some mathematics or some binomial approximations, we will get T1 equals to 2L upon C 1 plus V square upon C square. Now just assume that this is the first case. This is the time, this is the original time taken by beam of ray to go from G to plate M2. Now let's calculate the time taken by beam of ray to go from G to M1 and then come back from M1 to G, and for that we are just going to do the mathematics further. I have depicted here the setup again, the perpendicular component of velocity, along the horizontal line. So here M1 mirror was here, but I already earlier I have stated, पहले भी मैंने बताया है कि पूरा सेटअप जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, यह गारंटीड है कि यह M1 मिरर कुछ समय बाद यहाँ आ गया होगा. जब हम कैलकुलेट करेंगे उस समय यह कैलकुलेट करेंगे उस ड्यूरेशन में भी यह मूव ही कर रहा है, तो इट्स सिंपल गारंटीड कि यह M1 मिरर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया होगा. सो जो बीम ऑफ रे हमारा जा रहा था वह इस प्लेट से जा रहा था, वो बीम ऑफ रे पहले परपेंडिकुलर था, बट जैसे जैसे मिरर शिफ्ट होता गया परपेंडिकुलर जा रहा था, तो हम हम वो वाला बीम ऑफ रे लेंगे जो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है. तो यहाँ से जो रे अप गया इस मिरर से टकराया और फिर वापस इस रास्ते से आया, तब तक यह जी जो था मेरा प्लेट जो था पार्शियली सिल्वर प्लेट जो था यह भी शिफ्ट होके इस पोजीशन पे आ गया था. तो हमने ये सेटअप डिज़ाइन कर लिया. इस तरह से होगा, हमको पता चल गया कि हाँ मूव कर रहा था तो इस तरह से होगा. तो फर्दर हमको
हमको तो ना इस वेलोसिटी कंपोनेंट से मतलब है ना इस वेलोसिटी कंपोनेंट से मतलब है, बिकॉज हमारा जो है लेंथ कहाँ है, हमारा लेंथ परपेंडिकुलर है, दैट इज एल इज सिंपली परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल, सो हम परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेंगे ना ताकि हम टाइम कैलकुलेट कर पाए। तो हमने देखा कि यह स्पीड ऑफ लाइट c है और मेरा सेटअप कितना v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जनरल हम सिंपल से देखेंगे कि v वेलोसिटी है इधर और c a वाला है मेरा। तो अगर हमको ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए तो अपन क्या करेंगे, इस सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अंडर रूट होगा ना, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम सिंपल सा लगाएंगे यहाँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर नेगेटिव ऑफ बेस का स्क्वायर दैट विल बी द परपेंडिकुलर। तो अब मैंने ये करा ठीक, और आगे फर्दर सेक्शंस में हमने देखते हैं। तो T2 क्या हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा, L अपॉन T2 क्या है भैया, T2 है मेरा टोटल टाइम टू गो and then return back, means to go from G and hit mirror M1 and then return back to G again. So T2 will be L upon length was L upon root of C square negative of V square. I have calculated this velocity, this is the perpendicular component of velocity, and further यह काम दो बार हो रहा है, सो वी हैव टू ऐड द सेम एल अपॉन अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इस समय हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी हम कब सोचते हैं जब मेरा सेटअप इसी डायरेक्शन में चल रहा होता है या फिर इस डायरेक्शन के पैरेलल एंटी पैरेलल होता है। बट मेरा जो अभी वेलोसिटी हम ले रहे हैं वो इसके परपेंडिकुलर है, सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वह इस सेटअप के वेलोसिटी से अनडिस्टर्ब्ड रहेगा। तो इसको फर्दर हम कैलकुलेट करने से 2L अपॉन अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर लेके आए। फिर थोड़ा सा बाइनोमियल हमने लगाया, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशंस, और हमने सेकेंड टाइम कैलकुलेट कर ला, T2 निकाल के लाया 12 अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमारे पास दो टाइम आ गए। पहले वाले सिस्टम का पहले वाले टाइम आ गया जिसमें रे पार्सली सिल्वर प्लेट से जा रही थी मिरर M2 तक और फिर वापस आ रही थी, उसको हमने T1 नेम दिया था। सिमिलरली पार्सली सिल्वर प्लेट से मिरर M1 तक जा रही थी फिर वापस आ रही थी, उसको मैंने T2 नाम दिया। नाउ लेट्स जस्ट टेक कि यह दोनों टाइम बराबर है या फिर डिफरेंट है। तो हमने देखा कि दोनों टाइम डिफरेंट है। तो इन दोनों जब दोनों डिफरेंट है तो इनके बीच में कुछ चेंज भी होगा, कुछ डेल्टा टाइम भी होगा। तो हमने डेल्टा टाइम निकाला, डेल्टा टाइम इज T1 माइनस T2, और मैंने इसको फर्दर मैथमेटिक्स किया तो डेल्टा टाइम का वैल्यू निकल आया LV स्क्वायर अपॉन CQ। दिस इज द टाइम डिफरेंस। सो अब माइकलसन के दिमाग में एक बात आती है कि अगर टाइम डिफरेंस है तो पार्ट डिफरेंस भी होगा, पार्ट डिफरेंस भी निश्चित होगा। तो उन्होंने पार्ट डिफरेंस भी कैलकुलेट करा। पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, सिंपली स्पीड ऑफ लाइट को मल्टीप्लाई कर दिया इस टाइम डिफरेंस से, और मल्टीप्लाई करने से उनके पास पार्ट डिफरेंस का वैल्यू यह आ गया, पार्ट डिफरेंस का वैल्यू यह आ गया। तो ये तो एक पार्ट डिफरेंस आ गया, और इसमें उन्होंने मतलब एजम्पशंस में जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें लेंथ का वैल्यू उन्होंने 10 सेंटीमीटर रखा था। V वेलोसिटी ऑफ ऑथ है दैट इज़ 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, और C इज स्पीड ऑफ लाइट। तो इससे भी वो कैलकुलेट कर लेते पार्ट डिफरेंस। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो एक बार इस पूरे सेटअप को, जो भी मेरा पहले सेटअप था, जो भी यहाँ पे मेरा सेटअप था, इस पूरे सेटअप को 90 डिग्री से टर्न कर देते हैं। मीन्स इस M2 को ऊपर लेके आते हैं और M1 को नीचे लेके आते हैं, ताकि मतलब एक बार देख पाए कि फिर से टाइम डिफरेंस वहीं आ रहा है या फिर अलग आ रहा है। ठीक है, उन्होंने इस पूरे सेटअप को 90 डिग्री से फिर से रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद भी पार्ट डिफरेंस तो पार्ट डिफरेंस है भाई, रोटेट भी कर देंगे तो ये वाला जो मेरा L है, और पहले जो टाइम इसको लग रहा था वो टाइम अब इसको लगेगा, और इसको जो टाइम लग रहा था वो टाइम इसको लगेगा। तो टाइम डिफरेंस भी सेम ही आने वाला 90 डिग्री रोटेट करने से, और यह लेंथ तो सेम पहले से था ही। तो जब टाइम डिफरेंस सेम आएगा तो उसका पार्ट डिफरेंस भी सेम आएगा। तो पार्ट डिफरेंस भी अगेन हमने निकाला LV स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर प्लस LV स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। इन दोनों को हम सम अप करेंगे तो 2LV स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर आ जाएगा। 90 डिग्री रोटेशंस के बाद यह पार्ट डिफरेंस है। और फिर फर्दर इस 2L वो वहाँ टेलीस्कोप से फ्रिंज पैटर्न देखना चाहते थे, तो 2LV स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर को वह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n लैम्डा के बराबर रख देते हैं। तो n की वैल्यू निकाल के ले आपके आते हैं
तो एल का वैल्यू अगेन 10 रखेंगे, ये हमने बता दिया पहले ही। और लैम्डा जब सोडियम लैम्प है तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू इतनी मीटर होती है। इन सभी वैल्यूज़ को इसमें पुट करने से एन की वैल्यू 0.34 आई। इससे पता चला कि हाँ भाई कुछ इंटरफेरेंस हुआ होगा, फ्रिंज पैटर्न्स आने चाहिए मैथमेटिकली। लेकिन माइकलसन साहब जब टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे थे नीचे में, यहाँ जो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन पर्पस के लिए लगा के रखे थे, यहाँ से जब ऑब्जर्व कर रहे थे तो इस तरह का कोई भी पैटर्न उनको नहीं मिला। तो इस तरह से यह पूरा एक्सपेरिमेंट जो है नल रिजल्ट दिया। इस एक्सपेरिमेंट का क्या था कि मतलब कोई रिजल्ट ही नहीं आया। फिर इसका कंक्लूजन क्या निकला कि या तो ईथर प्रेजेंट ही नहीं है, और अगर है तो यह इम्पॉसिबल है कि उसको इस एक्सपेरिमेंट से डिटेक्ट किया जा सके, या फिर किसी भी एक्सपेरिमेंट से डिटेक्ट किया जा सके। फिर दूसरा कंक्लूजन निकला, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज सेम इन ऑल डायरेक्शन एंड डजंट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट ऑफ ऑब्जर्वर। यही बोला जा रहा है कि जो प्रकाश की गति है वह सभी ही दिशाओं में और सभी ही स्पेस में बराबर रहेगी, और वह वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट ऑब्जर्वर जो मतलब जो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। रिस्पेक्टिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर वह रहती है, मतलब लाइट स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वह हमेशा बराबर रहती है सभी डायरेक्शंस और सभी स्पेस में। अब देखिए, लेकिन माइकलसन साहब ने इतने मेहनत से इस एक्सपेरिमेंट को किया था, तो वह उसको जो है मतलब अपने गलत एक्सपेरिमेंट को ही वह क्या करने लगे कि जस्टिफाई करने लगे, और उन्होंने एक ईथर ड्रैग का कॉन्सेप्ट दिया जो कि बिल्कुल फालतू कॉन्सेप्ट है। माइकलसन खुद भी बोलते थे कि नेगेटिव रिजल्ट जो है वह अर्थ ड्रैग ईथर ड्रैग। माइकलसन हिमसेल्फ सपोर्टेड नेगेटिव रिजल्ट by stating that earth dragged the ether along with it, so there is no relative motion between earth and ether। उनका कहना था कि अर्थ जो मूव कर रही है अपने साथ साथ ईथर को ड्रैग करके लेके जा रही है, इसीलिए कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है और इसीलिए कोई फ्रिंज शिफ्ट ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं थी। फर्दर 1905 में आइंस्टीन साहब आए, उन्होंने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। उनका पोस्टुलेट ही है यह कि स्पीड ऑफ लाइट जो है हर दिशा में हर स्पेस में रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जर्वर्स फ्रेम सेम रहती है। और उन्होंने एक और बात बोला, माइकलसन साहब ने नहीं, 1893 में लॉरेंस फिट्जजेराल्ड का एक कॉन्ट्रैक्शन मेथड आया। वो बोल रहे थे क्या कि लॉरेंस फिल इन्होंने बोला कि जो लेंथ है ना वो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है। मतलब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हम लोग आगे STR में पढ़ेंगे, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में। लेकिन ये जो लॉरेंस और फिट्जजेराल्ड का जो कॉन्सेप्ट था कि वह 1 - v²/c² के फैक्टर से लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, और इसीलिए वह हमको पार्ट डिफरेंस और टाइम डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन हमको फ्रिंज पैटर्न्स नहीं मिल रहा है। सो ये दोनों बातें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों बातें बस ऐसे ही हैं, हवाबाजी वाली। फर्दर जब आइंस्टीन साहब आए, उन्होंने STR दिया, तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर का जो कमेंट था वो डिफरेंट लोगों का वो मतलब परमानेंटली ख़त्म हो गया। हम लोगों के इस एक्सपेरिमेंट का करना क्या है, कुछ नहीं। ये BPSC ऑप्शनल्स में जैसे हमको लगता है 66वीं BPSC या फिर 64वीं BPSC में माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट एज इट इज़ छप गया था पेपर में कि आपको उसको लिखना और उसके नल रिजल्ट को जस्टिफाई करना है। तो हमने जैसे एक बार मैं अच्छे से नोट्स भी दिखा देता हूँ, आप लोग चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे भी लिख के आ जाना है, सेटअप कर दिए, यहाँ लिख दिए उसका, और ऊपर में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख दिए। फर्दर यहाँ जो मैथमेटिक्स है उसका टाइम का कैलकुलेशन, एंड देन अगेन सेकंड टाइम का कैलकुलेशन, और फिर पार्ट डिफरेंस निकालना, टाइम डिफरेंस निकालना, और फिर दिखाना कि एन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ एन। बट वहीं माइकलसन साहब और जो भी ऑब्जर्वर टेलीस्कोप से देख रहे थे उनको कोई भी फ्रिंज पैटर्न नहीं दिखा, तो इसलिए यह इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नल आया, और उसको ये दोनों नल रिजल्ट का ये है कि ईथर होता ही नहीं है। अगर होता भी है तो किसी भी एक्सपेरिमेंट से उसको नहीं दिखाया जा सकता है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो सारे स्पेस और सारे डायरेक्शंस में सेम होता है। सो आज मैंने ट्राई करा हिंदी को भी लेके आने का, ऑल्दो दोनों मिक्स करने में मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबिलिटी लगा, बट फिर भी कोई नहीं, अभी धीरे धीरे सीख जाऊँगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर very cautiously and try to make notes, and
do share my channel as much as possible, and if you feel that this particular lecture is informative for it simply add some value to your information, then just like the channel and give your suggestion in comment box also. So thank you very much.